everyone, I am Divya and in today's class I am going to discuss how to prepare for JIGL. This was one of the most requested videos, most wanted videos, and students really want to know how to tackle with JIGL. Now the problem that students are facing with JIGL is that the language of the subject. So the subject is not too lengthy, but then the language makes it really difficult to memorize it. So here are a few techniques that will help you to get through JIGL with good marks. But before I start with the video, please do stick till the end, because in the end I'm going to give you one bonus tip which will be very useful for your examinations. Alright, starting a video. The first point, make notes. You need to make notes for JIGL. Making notes is very important. Why? In order to tackle the language itself, you need to make notes. Notes बनाने से क्या होता है, पहले तो जो unnecessary content है उससे हम बच जाते हैं. मतलब unnecessary content मतलब क्या होता है, कभी कभी कोई ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि 1 या 2 पेजेस के होते हैं. नाउ प्रैक्टिकली स्पीकिंग यू कैन नॉट राइट दैट मच इन द एग्जामिनेशन, राइट? आप एग्जामिनेशन के लिए कुछ थोड़ा सा पार्ट पढ़ोगे और उससे भी कम लिख कर आओगे, तो उतना ही पढ़ो जितना लिख के आने वाले हो. ऑल आई मीन टू से इज, जो पूरा पैराग्राफ है आपका, जो पूरा पेज है या 2 पेजेस है, पूरा टॉपिक है, उसको समराइज करके कुछ 6-7 पॉइंट्स बना दो. द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, टेक ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड मेक इट वन आंसर एंड ओनली कीप रिवाइजिंग दैट आंसर. तो इससे ये होता है कि बार बार मॉड्यूल खोल के पढ़ने की जरूरत नहीं है. एंड व्हेन यू रीड द tricky language of the module, it becomes even more difficult and boring to study the subject. So it's better to make your own notes. अब एक प्रॉब्लम ये आ सकती है कि मैम नोट्स बनाना बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, हर एक टॉपिक के नोट्स बनाने का टाइम नहीं मिलता है. तो ऐसे केस में व्हाट आई वुड से, सी, हैंड रिटन नोट्स आर ऑलवेज दी बेस्ट. ट्रस्ट मी, दे वर्क 100%. ओके, बट जिनको टाइम का प्रॉब्लम है, जो कहते हैं कि टाइम नहीं मिलता है, उनके लिए मैं ये कहूंगी कि देयर आर फ्यू चैप्टर्स जिनकी लैंग्वेज बहुत ट्रिकी है, तो प्लीज उनके हैंड रिटन नोट्स ही बनाइए. फॉर एग्जांपल चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर नंबर 7 एंड द अदर्स. ओके, द लास्ट चैप्टर विच इज IT रिलेटेड. बट जो चैप्टर्स बाकी के हैं, सिंपल लैंग्वेज है जिनमें, फॉर एग्जाम्पल लॉ ऑफ टॉट्स, उनका व्हाट यू कैन डू इज टू मेक नोट्स, कट, कॉपी, पेस्ट. एज इन दिस इज अ शॉर्टकट. आप क्या कर सकते हो, आपकी जो मॉड्यूल है उसका सॉफ्ट कॉपी लो, उसी में से जो सेंटेंसेस सिंपल लग रहे हैं एंड प्लस विच मेक सेंस, विच समराइज द आंसर, ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस को वर्ड में कट, कॉपी, पेस्ट कर दो. यू मेक योर आंसर, यू मेक द नोट्स ऑफ एंटायर चैप्टर, प्रिंट आउट निकालो, उतने नोट्स पढ़ लो. ओके, दिस इज द की. दिस इज जस्ट, यू कुड कॉल सम स्ट्रेटेजिक स्टडिंग और स्मार्ट स्टडी. इससे ये होगा कि इससे आप उतना ही कॉन्टेंट पढ़ेंगे जो पूरा आंसर को समराइज कर रहा है, प्लस जितना आपको याद रखना होगा. यू विल नॉट हैव टू रीड the unnecessary content and you will not have to memorize the unnecessary content. So this is why making notes is very important. In order to make your work simpler, you will have to make notes. I know it could be tedious, but trust me, it's a one-time hard work, and rest, all the months are going to be very smooth, and this will be majorly helpful before the examination. You will remember me if you make your notes. Point number 2. Revise every day. I teach the subject, so I always keep telling my students to first make notes and revise every day. Subjects like taxation and JIGL need constant attention. So when I say revise every day, I don't mean sit for 5 to 6 hours on a stretch. Maybe 1 or 2 hours is good enough. So 1 or 2 hours dedication could be good enough. The reason is because language इतनी difficult है, इसकी tricky है ना, तो students को उसको रोज पढ़ना पड़ेगा in order to get well adapted to the language. हमको adapt करने के लिए इसको रोज revise करना है. तो this subject is something like, अगर मैं कह रही हूँ make notes, अगर आप आज पढ़ के 2 महीने के बाद notes बनाने के लिए बैठते हैं, you will forget everything. सारा वाइप आउट हो जाता है. यू डोंट अंडरस्टैंड द बुक लैंग्वेज ऑल्सो देन. सो इट्स बेटर, जिस दिन क्लास की सब समझ में आ गया क्लास में, उसी दिन नोट्स बना लो, या उसके एक दिन में नोट्स बना लो विद इन 24 आवर्स. सो दैट इज द सेकंड पॉइंट. कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, राइटिंग प्रैक्टिस, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन. व्हाई एम आई सेइंग, देखो मैं SBC में नहीं बोलती राइटिंग प्रैक्टिस करो, मैं यहाँ पे क्यों कह रही हूँ, बिकॉज अगेन फर्स्ट स्पीड तो चलो बढ़ेगी हर सब्जेक्ट के लिए, बट सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट JIGL के लिए क्यों है, क्योंकि आपको लैंग्वेज से अडेप्ट करना है खुद को. मैंने बहुत स्टूडेंट्स का केस देखा है जहां पे यू अंडरस्टैंड क्या पढ़ा रहे हैं, आपको टॉपिक समझ में आ गया, मगर हम लिख नहीं पाते उसको, वी कैन नॉट एक्सप्रेस इट इन द एग्जामिनेशन, ठीक है. तो प्रॉब्लम यहाँ पे आती है. एंड इफ यू डू नॉट राइट इट वेल इन द एग्जामिनेशन, नेचुरली मार्क्स नहीं मिलते हैं. Alright, so these are the 3 tips. इसके अलावा मेरे पास कोई टिप नहीं है, ना किसी और के पास हो सकती है, बिकॉज इस सब्जेक्ट में कोई शॉर्टकट नहीं है. इनफैक्ट आई बिलीव लाइफ में किसी चीज के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है. सो यू विल ऑलवेज हैव टू वर्क हार्ड एंड मेक इट हैपन. ऑलराइट, अपार्ट फ्रॉम दीज 3 टिप्स, नाउ कम्स माई स्पेशल टिप. तो जो सारे स्टूडेंट्स एंड तक ये वीडियो को देख रहे हैं, चलिए आपको बताती हूँ मैजिकल टिप. तो ये टिप वो है कि जब कोई ऐसे टॉपिक के आप नोट्स बना रहे हो जो कि बहुत ट्रिकी है, तो इसके नोट्स आप कैसे बना सकते हो. तो कुछ स्टेटमेंट्स जो समझ में आते हैं वो मॉड्यूल से ले लो, और कुछ स्टेटमेंट्स गूगल पे से ले लो. जस्ट मेक श्योर यू मेकिंग अ रेलेवेंट आंसर. ओके, योर आंसर मेक सेंस. सो अगर आप गूगल से भी ले लेते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज फार एज यू एक्सप्लेनिंग इट राइट.
अब एग्जाम में हमको क्या करना है, पहले तो पॉइंट वाइज लिख के आना है, सेकंड जो आपके पॉइंट्स मॉड्यूल के हैं अंडरलाइन करके आना है, हमको अच्छे से अंडरलाइन करके आना है. द मोमेंट यू अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस इन योर आंसर्स, स्पेशली द सेंटेंसेस विच आर ऑफ द मॉड्यूल, दैट वेरी मोमेंट यू गेट योर मार्क्स. सो दिस वॉज अ ट्रिक एंड टेक्निक कि जहाँ पे आंसर्स डिफिकल्ट होते हैं आप वहाँ पे गूगल की हेल्प ले सकते हो, बट जो मॉड्यूल की कुछ स्टेटमेंट्स है, वर्ड्स है, उसको अंडरलाइन करके आ जाना. You will be set to go. And that's all about JIGL. I want to conclude it right here. अगर आपको कोई और डाउट है, डिफिकल्टी है, if you want to ask anything, please feel free to comment it down and I will reply to your answers. I hope this is useful and trust me, if you follow these tips, these are more than sufficient. You will score extremely well. All the very best. Keep studying. I'll see you all in the next class. Thank you so much.